Hello, guys. I'm back with a new episode. And before starting, a brief introduction about myself. My name is Dr. Hara Prasad Mishra. I'm an Indian practicing medical doctor. I completed my MBBS from Delhi, and post that, I'm also working as a physician as well as a researcher. In the past, I've been associated with multiple organizations, B Teams Delhi, IIT, Triple IT Delhi, and Max Group. That was my short, brief intro, and welcome again. Today, we'll be discussing about a very important topic. And before going to that, this is my book. I authored it last year during the pandemic, and if you want, you can check out the description. You can order your copy, and also the audio format is also available. For any more details, you can check out the description section. Coming back to the topic of our discussion today, as you can see on your screens, today we'll be discussing about depression. So, if you particularly can see this particular quote, it says, "We hide to try our feelings, but we forget that our eyes speak." Very, very interesting. Similarly, this quote by Jasmine, which says, "What people never understand is that depression isn't about the outside, it's about the inside." Particularly when, as a physician, I'm asked to depict or to graphically represent something about depression, I use this particular picture. A woman is sitting, or a male is sitting with a lot of sadness, and there is a, you can say, a beast or something like that standing behind, trying to capture something like that. So, if you read this particularly, which says, when you are depressed, you don't control your thoughts, you thoughts rather control you. I wish people would understand this. This is something different, and if you see in this particular picture, this particular lady is trying to jump and move away from the bed, but the scenario is slightly different. She's trying to run, but she couldn't. No one realizes how strong someone with depression has to be just to do daily stuff. It's very, very difficult, like shower, brushing, combing your hairs, and even getting out of bed. This one, which says, "You look happy." It says, "You look happy, but you don't feel happy." So there is a very, very difference, look and feel. That's what depression does to you. And the last quote I have brought for today's description: when you suffer from depression, "I am tired" means a permanent state of exhaustion that sleep doesn't fix. You will often listen to people saying that I slept for 8 hours or 10 hours, but यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, somewhat like that. So आगे चलने से पहले, these are some of the clippings I wanted to discuss. Some recent news. So this is about how depression is acting as a slow poison and triggering suicide. So with depression increasing, suicide also increases to a great extent. This particularly, in which a recent study, in which Lancet, which is a leading medical journal, as well as World Psychiatric Association (WPA), they have recently launched a document, and they say that it is still a neglected global health crisis despite the fact that pandemic has brought the limelight. अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो साधारण भाषा में डिप्रेशन मानसिक बीमारी जो थी वो आज भी है, पहले भी थी, बट कोरोना के टाइम पे लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता हुई।
बट इसके बावजूद भी आज भी इसको लेकर काफ़ी कम जानकारी है लोगों में और काफ़ी सारे भ्रम भी पले हुए हैं. देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स इन एंड अराउंड डिप्रेशन. Also, there is another interesting figure which says that 280 million people currently are suffering from depression. Very, very heart wrenching, I will say. If we move ahead, आगे जाने से पहले, if we talk about signs and symptoms, क्या क्या लक्षण होते हैं डिप्रेशन के. So, अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम या इमेज को देखें तो to start with, there is persistent feeling of depression, in which you will see that there is feeling of sadness, then there is loss of activities, interest particularly doing them. Often the person sleeps all time, there is oversleeping a lot of times, you will see. Appetite changes are there, थकावट काफ़ी होती है, fatigueness is there. Thought process gets delayed, so there is a difficulty in thinking quickly and clearly. Lot of times you will see people getting irritated, jaldi चिड़चिड़ा हो जाते हैं. They will be getting frustrated and they will be pessimist as well. Pessimist, like they will say that हमसे नहीं होगा, the world will doom, everything. They will talk about negative things. Then simultaneously you will see a lot of people complaining about physical ache and pains, and in some cases there is recurrent thought of death and suicide. अगर हम बच्चों की बात करें, particularly about the teens, so the facts and figures are pretty interesting, I will say. So the signs: migraine, सर में दर्द होगा, weight change will be there, eating habits change होंगी, काफ़ी ज़्यादा बच्चे रो पड़ेंगे छोटी छोटी बातों पे, lack of energy will be there, and a lot of times you will see parents complaining कि हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता, दोस्तों से बात नहीं करता. A lot of parent and relative will say that academic performance काफ़ी degrade हो रहा है. Students often complain that we are sleeping more, hostility होती है, चिड़चिड़ा, hopelessness, लाइफ में हमसे नहीं होगा, दुखी रहेंगे और लोगों से नहीं मिलते. बट इसके अलावा कुछ लेसर नोन भी सिम्टम्स हैं जो कि सब में नहीं पाया जाता, बट कुछ में पाया जाता है. जैसे कि कुछ केस में बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, कुछ लोगों को फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है कि यार हमारे वजह से हुआ, हमने ये गलती कर दी, और दैट गिल्ट विल बी सो मच दैट दे वेयर एवरी टाइम दे विल बी फीलिंग गिल्टी. Indecision, they will not be in a position to take quick and fast decisions. Then they will be taking alcohol, drug, substance abuse, you can say. उसके साथ साथ there is loss of interest, किसमें ना favorite hobbies में. और सबसे बड़ी बात, in some cases there is physical pain. जबकि depression is a, if I talk, depression is a mental illness. Okay. Depression is a mental illness, but you will see that there is physical pain in some cases as well. So if you particularly talk about कि body में क्या क्या होगा, so in that case depression में body में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जिसमें कि एक इंसोम्निया, सोने में दिक्कत होगी, सर में दर्द होगा, फटीग, थकावट काफ़ी होती है, लिम्स में क्रॉनिक पेन, काफ़ी लंबा समय तक दर्द रहता है, काफ़ी लोगों को डायरिया होता है, काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है. जबकि डायरिया में क्या होता है, स्टूल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी. कॉन्स्टिपेशन इज़ वाइस वर्सा. तो दिस आर क्वाइट एटिपिकल. कुछ लोगों में इन्फ्लेमेशन भी देखा गया है कि शरीर में सूजापन आ जाता है. सम पीपल ऑल्सो कंप्लेन अबाउट हार्ट डिजीज़, एंड आई विल नॉट से हार्ट डिजीज़ डायरेक्टली, बट या देर इज़ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू कैन से. जैसे मैंने पहले ही बताया था, लॉस ऑफ वेट और इवन गेन इन सम केसेस, एंड सम पीपल ऑल्सो कंप्लेन अबाउट नोजिया. सेक्शुअल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो जाता है मोस्टली. बट या अगर हम आगे चलें तो हमें समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं. तो हमारा
दो टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक है DSM और एक है ICD। ठीक है, तो ये DSM ICD क्या होते हैं? तो हमारी जितनी भी साइकेट्री की बीमारियां होती हैं उनका हमने डेफिनेशन रखा हुआ है, जिसमें कि हम बताते हैं कि इस बीमारी में ये सिम्टम्स या ये साइंस होंगे और इतने फ्रीक्वेंसी में होंगे और इतने ड्यूरेशन के लिए होंगे और इतने सीवियरिटी के लिए होंगे। तो उस हिसाब से हमने डेफिनेशन बना रखे हैं बीमारियों के लिए। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों, वाई वी हैव फिक्स्ड दिस काइंड ऑफ क्राइटेरिया? तो देखिए, ये इसीलिए है क्योंकि मान लीजिए एक ही डिप्रेशन का मरीज 3 डॉक्टरों को दिखाए और तीनों फिर उसको अलग अलग बीमारियों का नाम दे सकते हैं, बिकॉज मानसिक बीमारियों की कोई ब्लड रिपोर्ट या कोई एक्सरे, कोई CT स्कैन नहीं होता जैसे बाकी बीमारियों के लिए होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे टीबी की बीमारी है, तो टीबी में मान लीजिए किसी को काफ़ी टाइम से 3-4 हफ्तों से खांसी हो रही है, बलगम आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, बीच बीच में बलगम में खून आ जाता है और खांसी काफ़ी देर तक रहती है, वज़न कम हो रहा है, तो हम टेस्ट कराएंगे, टीबी का टेस्ट कराएंगे, खून की भी जांच होगी, करके हमें टीबी पता लग जाएगा। बट मानसिक बीमारियों में जैसे कि हमारी डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गया, पैनिक हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़, इन सब की ना ऐसी टेस्ट नहीं है एज ऑफ नाउ। मतलब हम आज बात कर रहे हैं 2022 में, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट नहीं होते, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव का मतलब जो डॉक्टर देख रहा है उसके चयन पे, उसकी थॉट प्रोसेस पे काफ़ी डिपेंडेंट। सो दैट्स वाई हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, DSM और ICD की। तो अगर हम DSM ICD के हिसाब से देखें तो एक हमारी होती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कुछ सिम्टम्स हैं, अगर वो देखे जाते हैं तो हम पेशेंट को MDD बोलते हैं, MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। वैसे ही हमारा एक है पेरीनेटल डिसऑर्डर। पेरीनेटल डिसऑर्डर क्या होता है? जिसमें बच्चा पैदा होने से पहले या बच्चा पैदा होते ही माँ को डिप्रेशन फील होता है। एक हमारा होता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये मेंस्ट्रुएशन के आसपास होता है और इसमें महिला जो है वो डिप्रेस हो जाती है, गुस्सा करती है, चिड़चिड़ी सी हो जाती है। ठीक है, और एक हमारा डिप्रेशन होता है जो कि ना पूरे दिन ही रहता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, तो इसको हम कहते हैं PDD, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एक है हमारा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये ना सीजनली होता है, मतलब मान लीजिए विंटर के टाइम होगा, ठीक है, समर में बंदा सही होगा, मतलब पेशेंट विंटर में सिम्टम होगा और समर में पेशेंट नॉर्मल होगा। एक है हमारा एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन बड़ा ही अजीब सा डिप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं पेशेंट्स के, एक डिप्रेशन मरीज में जो जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो एटिपिकल वाले में नहीं दिखते, जबकि कुछ डिफरेंट सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिम्टम्स दिखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे एक डिप्रेशन का मरीज है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो एटिपिकल वाला कुछ और ही करेगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया हमारा डिप्रेशन का। अगर हम पेरीनेटल डिप्रेशन की बात करें तो पेरीनेटल डिप्रेशन में ऐसा होता है कि ये प्रेगनेंसी के आसपास देखी जाती है काफ़ी हद तक, और ये 4 हफ्तों के अंदर अंदर ही देखी जाती है डिलीवरी के। ठीक है, 4 हफ्तों के अंदर अंदर ही देखी जाती है डिलीवरी के। इसमें क्या क्या होता है, इसमें मरीज़ को ना फोकस करने में इशू आएगा, होपलेसनेस होती है काफ़ी ज़्यादा कि यार कैसे होगा, क्या होगा। जो मदर है वो काफ़ी चिड़चिड़ी सी रहती है, इरिटेबल बन जाती है, उसको हरदम थकी थकी सी रहती है, फटीगनेस होता है, बेबी के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पाती, माँ और बच्चे में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो मिसिंग हो जाती है। साथ ही साथ हरदम ऐसा होता है कि स्लीप पैटर्न जो है मदर का वो भी चेंज करता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी लोगों को कम पता है, तो एक पेरीनेटल डिप्रेशन भी होता है। अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश में जैसे मैंने बताया डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हम देखें तो इंडिया में टोटल केसेस ऑफ डिप्रेशन 5.7 करोड़ है,
और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और टोटल पॉपुलेशन का 4.5 आता है। तो आप समझ सकते हैं डिप्रेशन कितनी बड़ी महामारी की तरह है। अगर हम मानसिक बीमारियों में देखें तो जैसे कि मैंने बताया था कि मानसिक बीमारियां हमारी काफ़ी तरह की हो सकती हैं। वो डिप्रेशन हो सकता है, वो एंजाइटी हो सकता है, वो ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, अल्कोहल अब्यूज़ हो सकता है, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, बाइपोलर है, वैसे ही करके कुछ और बीमारियां हैं। तो इसमें अगर हम देखें पहले नंबर पे डिप्रेशन है, दूसरे नंबर पे एंजाइटी है, और जबकि डिप्रेशन 40 और एंजाइटी ऑलमोस्ट लगा लीजिए 15%। तो अगर ये 15 होता है और ये 40 है तो लगभग 2.2x 2.2 से 2.3x का डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिप्रेशन एक समस्या बन चुका है। अगर किसी मरीज को डिप्रेशन है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे पास एक किरण हेल्पलाइन नंबर है। तो किरण हेल्पलाइन नंबर से हम क्या कर सकते हैं, किरण हेल्पलाइन नंबर से हम सिंपली मरीज को बताया जा सकता है कि अगर देखो आपको कोई समस्या है, अगर आपको सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है, घबराहट होती है, ठीक है, या फिर कोई और मानसिक समस्या लगती है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। ये ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, कुछ ही महीनों पहले इसे माननीय मंत्री जी ने ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करी थी। और अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिविटी देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव में वही है हमारा कि हम जल्दी से जल्दी स्क्रीन कर लें, ठीक है, फर्स्ट एड जो भी बेसिक फ़ोन पे जो बताया जा सकता है वो दे दें, कोई डिस्ट्रेस में कोई बहुत घबराया हुआ है उसको घबराहट मैनेज कर लें, ठीक है, लोगों की मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़े तो रेफरल भी कर लें, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी सारी बीमारियों का नाम भी दे रखा है कि किस किस बीमारियों में ये ओसीडी हो गया, सुसाइड हो गया, डिप्रेशन हो गया, पैनिक हो गया, एंजाइटी हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, पीटीएसडी हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया और मेंटल हेल्थ इमरजेंसी हो गई। अगर आप पूछें कि डॉक्टर साहब चलो आपने साइंस एंड सिम्टम्स बता दिए, यू हैव टोल्ड अस अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स, कैन यू टेल मोर अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट, क्या हम हमें इलाज के बारे में बताएंगे? तो इलाज में देखिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इलाज में अगर हम मोटा मोटा बताऊं तो जैसे ये हमारा मरीज़ है, ठीक है, ये हमारा मरीज़ है, अब इसके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसके पास जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में क्या होता है कि इस तरफ मरीज़ है, इस तरफ थेरेपिस्ट है। थेरेपिस्ट हमारा साइकेट्रिस्ट हो सकता है, ये हमारा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, और कोई दूसरा थेरेपिस्ट भी हो सकता है, और या फिर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हो सकता है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा एक होता है फैमिली और कपल थेरेपी। अब इसमें क्या किया जाता है कि लोगों को एक ग्रुप में बिठाया जाता है, जैसे कि ये हमारी थेरेपिस्ट और इस तरफ कुछ लोग ग्रुप में बैठेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको अलग से दिख रहे हैं ये है हमारे थेरेपिस्ट, और ये जो ग्रुप है ये है जिनको थेरेपी दी जाएगी, ये पेशेंट्स हैं। अब ये ग्रुप थेरेपी जो होती है, कभी कभी ग्रुप पूरी की पूरी फैमिली हो सकती है। जैसे मान लीजिए बच्चे को डिप्रेशन है तो बच्चा तो बैठेगा ही, उसके साथ माता पिता घर वाले बैठेंगे। अगर मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड को डिप्रेशन है तो इस ग्रुप में, पेशेंट के ग्रुप में हस्बैंड वाइफ बैठेंगे। उसके बाद कुछ केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी कराना पड़ सकता है, बट ये सिर्फ ओनली इन सीवियर केसेस, ठीक है, ओनली इन सीवियर केसेस, या फिर अगर सुइसाइडल थॉट आ रहे हैं, नहीं तो हम हॉस्पिटलाइजेशन इतना नहीं करते। एक होता है सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि आप योगा करिए, आप अच्छा खाना खाइए, आप गाने सुनिए, खुश रहिए, ये सब, ठीक है। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी है और जो एक हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो है हमारा सिंपली मेडिकेशन। अब इसमें हमारी काफ़ी सारी मेडिकेशंस हैं जो कि मॉडर्न मेडिसिन में आती हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्या क्या मेडिसिन्स होती हैं।
अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पे, फाइंडिंग द राइट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर यू। तो जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि हमारे पास बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं, कपल थेरेपिस्ट आते हैं, हमारे मैरिज काउंसलर्स आते हैं, हमारे आर्ट थेरेपिस्ट आते हैं, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। तो आप चूज़ कैसे करेंगे? तो सिंपली अगर मैं बताऊं, अगर एक डॉक्टर जिसने मेडिकल की पढ़ाई करी है, उसके बाद उसने मानसिक बीमारियों की पढ़ाई करी है, उसे साइकेट्रिस्ट कहा जाता है। जबकि जिसने सिर्फ मनोविज्ञान पढ़ा है, ठीक है, उसे साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं उनकी एक अलग से पढ़ाई होती है, वो आपको आपकी ऑक्यूपेशन में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर हैं, वो आपकी काउंसलिंग पार्ट को देखते हैं, जबकि दवाई वाली चीज़ें सारा का सारा साइकेट्रिस्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही इलाज कराएं और सही आदमी से कराएं, जो कि सही एजुकेशन, सही डिग्री उसने ले रखी हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दवाइयों पे। तो ये आपको पहले मैं बता दूं, समझा दूं कि कभी भी खुद से दवाई नहीं लेनी है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो खुद से दवाई नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, कृपया करके इसका ध्यान रखें। आई विल रिपीट, से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। हरदम कोई भी दवाई अपने डॉक्टर की सलाह से लें। ठीक है, और अगर कोई समस्या हो तो आप सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, और मैंने तो आपको किरण की भी नंबर दे रखा है, किरण हेल्पलाइन है अपना, तो उस पर आप कॉल करके देख सकते हैं। बट आपको हरदम दवा डॉक्टर की सलाह पर लेनी है। अब आते हैं हमारे पास दवाई में भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास दवाई में जो हमारी बहुत ही प्रोमिनेंटली या बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, उसमें हमारी ये वाली ग्रुप, ये वाली ग्रुप और ये वाली ग्रुप काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है, तो एक होता है हमारा SSRI, एक होता है हमारा SNRI, एक एक हमारा ग्रुप होता है TCA, जिसमें कि हमारा आता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा नहीं, इतना क्यों, ज़रूरी नहीं है। बट मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि देखिए, डिप्रेशन जो होता है उसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते, यू कांट थिंक कि यू टेक द मेडिकेशन फॉर से 1 वीक एंड यू विल गेट क्योर्ड कम्प्लीटली। तो आप ये नहीं सोच सकते आपने कुछ ही समय के लिए दवा ली और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इट शुड बी अ लॉन्गर ट्रीटमेंट। दूसरी जो आपको बात ध्यान रखनी है कि जो डिप्रेशन का इलाज है वो बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो डिप्रेशन वापस आ सकता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें आई हैं, जैसे आपको पता ही है योगा काफ़ी अच्छी चीज़ है, योगा आपको करनी है। तो योगा से क्या होता है, हमारी गाबा होती है केमिकल दिमाग में, उसकी जो क्वांटिटी है वो इंप्रूव होती है। तो एक्चुअली हम लोग ना ब्लू कहते हैं, जब भी इंसान दुखी होता है तो उसे बीट द ब्लूज कहा जाता है। तो इसीलिए इसका टैग लाइन है, बीट द ब्लूज विथ योगा। इसी के साथ साथ कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई हैं डिप्रेशन के लिए, जिसका नाम है TMS, और कुछ आजकल थेरेप्यूटिक वीडियो गेम्स बन रही हैं, कीटामीन काफ़ी प्रचलित है। बाकी एज ऑफ नाउ 2022 में अगर मेरे को पूछें पर्सनली, तो मैं कहूँगा डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ और सेल्फ हेल्प ग्रुप यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग आउट, एंड दिस इज़ योर डॉक्टर हरा प्रसाद मिश्रा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक दूसरे एपिसोड में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।